हाय एवरीवन। तो पिछली बारी हमने टॉपिक छोड़ा था भी कैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स और ट्रिग्नोमेट्री का फिजिक्स में यूज़ करते हैं। सो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी बताया था जिसमें इट वाज अ जेई मेन क्वेश्चन जिसमें हमने कुछ tan इनवर्स जैसी कोई टर्म का यूज़ किया था बट हमें एक्चुअली में पता नहीं है अभी वो क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, वो कंसेप्ट वहाँ से आया है। बट टुडे आई एम मैं आपको ये बताऊँगा भी मतलब उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है हमको एंड व्हाई डिड वी इंट्रोड्यूस दैट कंसेप्ट। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद व्हाई वी एक्चुअली यूज़ दैट कंसेप्ट। व्हाट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? सो लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मैं आपको एक ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूँ। Say, let's say we have a triangle. Okay, let's say we have a triangle. So let me give this triangle some, let's say the base is b and the perpendicular is a, and the hypotenuse is, of course, a root of a square plus b square according to Pythagoras. So now I'm gonna ask a question here. What if I label this angle theta? This is 90 degree, of course, and if I label this angle theta, so what will be tan theta? Tan theta is of course a by b. So if tan theta is a by b, and I want to know what this theta is, I can't actually find out, right? It's very difficult to find out what actually this theta is. So what do we do? तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में? तो let's say we also have to find sine of this angle, and we also have to find sin theta for some sake. And अगर मैं आपको ये इक्वेशन को ऐसे भी बोलूँ भी हमको ये sin थीटा से हमको ये थीटा फाइंड करना है, सो कैन यू फाइंड दैट? एक्चुअल में ये बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज नाउ यू डोंट नो ए एंड बी, राइट? बट दिस माइट नॉट बी द ओनली सिचुएशन। ओके, लेट्स से दिस let's say I know A, okay, or I know B. Let's say I know B and I don't know A, and A can be anything. So I named it X. So now what will become? Like X will always be unknown, right? तो मतलब अगर X हमको कभी पता ही नहीं लगेगा, so how do we calculate the value of tan theta? Or there is one more problem with this concept. The other problem is, let's say that let's give this angle some coordinates. So let's take the same triangle, and now we give the value b to b3 and a we keep 2. So let me find out what tan theta is now. अब मैं tan theta find करने की कोशिश करता हूँ. So as I commute tan theta comes out to be 0.66666 as if we go on these value. So if 0.666 and if I ask you the question what is the value of theta here, because this is very difficult again, right? मतलब आपको पता ही नहीं है अभी कब 0.666 आपने कोई वैल्यू नहीं पढ़ी है. आपने tan 45 पढ़ा है जो 1 होता है, आपने tan 60 पढ़ा है जो √3 होता है, but there is nothing that you have studied about 0.666, right? So what do we do in this, मतलब इस situation में क्या करते हैं हम? What do we do here? तो the answer for this is that we have come up with this function that जो हमें इस चीज़ों से डील करने की मतलब मैथमेटिकल टूल देता है हमको. तो वो फंक्शन को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं. इसकी ज़रूरत सिर्फ ऐसी ही सिचुएशन में नहीं पड़ती है. इसकी ज़रूरत वो सिचुएशन में भी पड़ती है जहाँ पे यू हैव टू इससे आपको कैलकुलस में भी ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज कभी आपको किसी चीज़ का एरिया निकालना हो तो काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जब हमें एंगल तो पता होता है बट सॉरी, हमें ये तो पता होता है अभी बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है, बट
हमें एंगल्स का थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता नहीं होता है, सो इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू फाइंड एरिया, राइट? कभी कभी इसके अंदर तो सिचुएशन अराइज वेयर वी नीड अ मैथमेटिकल टूल कि हम थीटा को चेंज करें और हमारी वैल्यूज चेंज होती रहें। अ, मतलब हमारी वैल्यूज कोई भी हो, बट हमें थीटा का पता लग जाए। सो we to define that kind of function we use inverse trigonometry. So let's just see what actually it is. So if tan theta is a by b, like in our previous example, and I take this tan this way, okay. So what I'll do is I'll take this tan and put it here, and this became tan inverse just because it goes here, the power of it, this becomes minus 1. This is the way of representing it, okay. It's just a representation. Now this form, it also can arise from a single variable, like if it was equal to x here, then you can say that tan inverse x would have been the, okay, here if I write tan inverse, this also could have been the formula. So there are many ways to write it, okay. Now same way, if I you have to write the in same way, if you have to write the sine also, so sine theta also we can write it this way, okay. And the sine theta, that also we can find theta, and theta will be sine inverse a by root a square plus b square. Till here it's fine, okay. तो हमने क्या किया, हमने एक इक्वेशन ली, हमें tan थीटा फाइंड किया, sin थीटा फाइंड किया, बट हमें एक्चुअल में थीटा चाहिए था। तो हमने क्या किया, एक tan इनवर्स नाम का एक फंक्शन बनाया, एंड वी कॉल्ड इट, एंड हमने ये कहा भी जब भी कोई भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू इस ए बाई बी में आएगी, तो वो हम tan इनवर्स उस फंक्शन की उस रियल वैल्यू को थीटा में बदल देगा। इट्स जस्ट लाइक, अगर मैं आपको बोलूँ हेयर भी दैट अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू 1, एंड मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी थीटा, देयर आर मेनी आंसर्स, बट आप बोलोगे दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मे बी एन आंसर। और ऐसे कैलकुलेट करने के लिए यू विल राइट दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, एंड हमें सबको पता है भी 45 डिग्री पे tan 45 इज इक्वल टू 1। सो जब tan की वैल्यू कब 1 होती है, वो है 45। सो वी कैन कैलकुलेट इट दिस वे, राइट? बट नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेस, which is, this all is fine, right? भी tan 45 की tan 45 की वैल्यू 1 है, सो जब tan इनवर्स 1 तब होगा, tan तब 1 होगा when the value is 45, the value of theta is 45, तब tan 1 होगा। so tan 1 कब होगा? when value of theta will be 45। so this is kind of an inverse logic, right? But it's not just about this. So let's see next what the story is, okay, because that's not all. So I have assumed an equation here, just a simple equation, that sine theta is equal to x। साइन थीटा की कोई भी वैल्यू है जो है x, जो हमें पता नहीं है, तो एंड वी अप्लाई द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रूल्स हियर, एंड थीटा becomes sin inverse x, but there are still some problems with it. So first I should discuss the problem. The first problem is, what is the value of x here? Because अगर आप बोलो भी साइन थीटा इज इक्वल टू 2, राइट, एंड x की वैल्यू 2 है इधर, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें पता है भी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है। सो देयर आर सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन x, मतलब x किसी सेट के बीच में लाई करना चाहिए, और वो सेट क्या है, लेट्स सी। तो as we know sin theta is equal to x and theta is equal to sin inverse x, so what value does sin inverse take? जो ये फंक्शन है, ये कौन सी वैल्यूज लेता है? so x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो ये फंक्शन ले सकता है? One, if you put your mind to it, and you see that
The value of sine theta, it ranges from -1 to 1, as everybody know. If some of you don't know, the I'm telling you right now that the graph of sine theta is something like this. Okay, something like this. यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, एंड यहाँ पे here it's pi, 3 pi by 2, and here is 2 pi. So the thing is, मतलब जो इस रेंज है, जो भी वैल्यू है साइन थीटा की, इट लाइज फ्रॉम 1 टू -1. इस 1 से ना तो ये ज़्यादा होती है और ना ही ये -1 से कम होती है. इट नेवर हैपन्स. ओके, ये इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है. सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स जो हमें दिख रहे हैं. सो व्हाट वी डू इज, अगर हमें एक्स पे एक बाउंडेशन चाहिए, सो हमें साइन थीटा पे तो बाउंडेशन पता ही है, दैट साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1. सो अगर मैं साइन थीटा की जगह को एक्स साइन थीटा की जगह एक्स से प्लेस कर दूं, तो हमें एक एक्स पे कंडीशन आ गई दैट जो साइन थीटा की वैल्यू है वो एक्स के बीच एक्स में रहनी चाहिए. तो एक्स किस में रहेगा? -1 और 1 में. तो इसको हम डोमेन भी कह देते हैं साइन इनवर्स की. डोमेन मतलब ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो साइन इनवर्स लेके और उसको किसी और वैल्यू में बदल सकता है, लाइक थीटा में बदल सकता है. बिकॉज आपको पता है अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो वो साइन इनवर्स की मतलब साइन की रेंज में ही होगी, राइट? साइन की रेंज -1 से 1 है, तो साइन इनवर्स की सारी वैल्यूज इसमें कंटेन होगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी शुड आस्क इज, so what about the values of theta, right? What about the values of theta? And also, what about tan theta, right? What about tan theta? If I write tan theta is equal to x, what about this one? So as it turns out that tan ranges from -infinity to infinity. So the value of x here also ranges from -infinity to infinity. So the good thing, actually this will not come in. तो द गुड थिंग इज भी tan थीटा में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको x की वैल्यू पे. सो यू कैन यूज इट हाउ एवर इट लाइक्स. मतलब अगर आपको कहीं पे MCQs में आपको आंसर चेक करना ना, तो अगर आपका जो डोमेन है, जो ये x की वैल्यू है, और आपको आंसर साइन इनवर्स में दे रखा है और आपकी x की वैल्यू -1 और 1 से ज़्यादा बड़ी आ रही है या ज़्यादा छोटी आ रही है, तो you can tell that which option is wrong. Okay, so you can tell it easily if they have given something like this. And for tan, the same thing applies, that but इसकी वैल्यूज -infinity से infinity तक कोई भी हो सकती है. So all real number are valid. Okay. Then last one is cos. The cos also is same as sine. They both are same because cos की वैल्यू जहाँ से साइन का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, तो cos का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, which means that it also takes the value from -1 to 1. Okay. तो हमें इसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है. सो cos x cos theta will also will be less than 1, and there should be less than is equal to, okay, less than is equal to sign, less than is equal to 1, and greater than is equal to -1. So same thing apply to cos, which applies to sine. So okay, these all are answered. Okay, so हमें एक चीज पता लग गई है अभी. The value of x of sine inverse x will all lie in what? -1 से 1. Same is for the cos, and the difference occur when we try to use sine. Okay, oh sorry, tan. The difference occur when we try to use tan. Tan में हम कोई भी वैल्यू, tan इनवर्स में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं. So the next question is, what about theta, right? Because okay, हमने वैल्यूज पे तो एग्री कर रही है, बट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ थीटा, राइट? बिकॉज भी हमने जब से ASCT रूल पढ़ा है, एड शुगर टू कॉफी रूल पढ़ा है, तो हमें पता है अभी थीटा 90 से ज़्यादा हो सकता है. तो क्या क्या सोल्यूशंस बनते हैं थीटा के? लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हियर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट.
Let's take an example. So first, I'm gonna ask you what is the value of theta. So theta can be in the range minus infinity to infinity. By this I mean that आप लेफ्ट साइड आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कितना मर्जी एंगल ले सकते हो, एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ -1 to 1, राइट? तो मतलब थीटा की सारी कई वैल्यूज के लिए sin थीटा और cos थीटा की कई वैल्यूज आएंगी. सो देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर अ सिंगल इक्वेशन. इससे मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई मीन बाय दैट देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. तो इससे मेरा मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो लेट्स से वी हैव sin theta is equal to half, and I tell you to calculate the value of theta. So what your simple procedure would say, आप क्या करोगे, that you will take sin inverse of half. बट इस पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज साइन इनवर्स हाफ की आपको वैल्यू पता ही है. अगर आपको कभी वैल्यू नहीं पता तो यू कैन सी इट इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और यू कैन जस्ट सी इट इन अ कैलकुलेटर. ओके, कैलकुलेटर में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स टैन इनवर्स ये सारे फंक्शन अवेलेबल होते हैं. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो दीज आर द कंडीशंस फॉर फाइंडिंग थीटा, राइट? सो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू दिस, एंड आपको कई सॉल्यूशंस पता है इसके, बट वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट यू नो इज 30 डिग्री, और आई शुड से π/6 रेडियन. दैट इज सर्टनली ट्रू. दैट इज सर्टनली ट्रू, बिकॉज साइन π/6 और साइन 30 डिग्री, I might say that it's half, so that will be one of the solutions, and that is one of the solutions. But if you think a little bit further, अगर आप थोड़ा सा और सोचो तो देर इज वन मोर थिंग टू दिस. इसके कई और सोल्यूशंस भी हैं, बिकॉज मैंने आपको बोला था बी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इफ यू रिमेंबर इन द ASTC रूल. तो दैट ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द सोल्यूशंस. सो इफ आई से दैट साइन 180 minus π/6 is also a solution, or sine 2 pi minus π/6, yeah, sine 180 minus 60 is also a solution. 180 minus 30 is also a solution, right? Because the value of sine 30 sine 180 minus 30 is also a solution of the same equation only, right? Is equal, it can be written as sine 30 degrees. So it turns out that sine 150 is also a solution. Sine of 150 degree is also a solution here, and like that there are many, because आप कितनी बारी भी क्वाड्रेंट में घूम सकते हो, आपको कुछ ना कुछ एंगल्स तो मिल ही जाएंगे. सो दिस ऑल इज ट्रू, and as you will see now that yeah, this all is true. Okay, and you can see that 5 pi/6, which is actually is equal to 150 degree, is a solution, and sine 13 pi/6, which would be equal to 390 degrees, is also a solution. 360 plus 30. So there are infinitely many solutions. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक से ज़्यादा सोल्यूशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, व्हाट वी डिड इज वी कंस्ट्रिक्टेड द वैल्यू ऑफ थीटा. भी थीटा को हमने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, भी एक रेंज में ही होगा, इससे ज्यादा बाहर ये नहीं जाएगा. सो व्हाट आर द कंस्ट्रिक्शन, लेट्स सी इट. So yeah, so we have, in fact there are infinitely many solutions, so we tackle this. We have constricted the range of theta. तो हमने थीटा की रेंज को कंस्ट्रिक्ट कर दिया. हाउ वी हैव कंस्ट्रिक्टेड इट, लेट्स सी. So theta was chosen for every inverse trigonometric function. So what I mean by this is, मतलब मेरा इस कहने का मतलब क्या है, अभी थीटा हम चूज कर लेते हैं अभी टू सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम. व्हाट वी डिड,
हमने क्या किया अभी, हमने थीटा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट कैसे? हमने एक ऐसा इंटरवल ले लिया, इंटरवल इन द सेंस भी हमने एक ऐसी रेंज ले ली, like we have taken here the range theta that is will remain from minus pi by 2 to pi by 2। इसका मतलब क्या है, भी जब भी आप थीटा लिखोगे तो आप जो सोल्यूशन चूज करोगे फॉर साइन थीटा, द सोल्यूशन यू वुड चूज वो कहाँ से होगा, पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2 तक। एंड वाई वी डिड इट, मतलब ये हमने इसलिए किया बिकॉज अगर आपको ध्यान से साइन का फंक्शन याद हो तो इट्स समथिंग लाइक दिस, इट बिहेव समथिंग लाइक दिस। मतलब नेगेटिव में जो सोल्यूशन है वो भी इसको दर्शाता है, राइट? अगर आप माइनस पाई बाय 2 करो या माइनस पाई बाय 2 में जाओ तो द सोल्यूशन विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो व्हाट दिस इज बी -1 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक साइन -1 से 1 तक चला जाता है, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस। ओके, ये -1 से 1 तक चला जाता है जो जो एक्चुअली हमें चाहिए। सो इसका मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जो भी हमें -1 से लेके 1 तक वैल्यूज चाहिए वो हमें मिल जाएंगी। लाइक एनी थिंग यू कवर, मतलब -1 से लेके 1 तक अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसका एंगल यू विल गेट इन दिस रेंज। बिकॉज साइन इनवर्स की, मतलब साइन इनवर्स साइन फंक्शन ही ऐसा है। ओके, वी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक इट कवर एवरी वैल्यू। सो इसीलिए -1 से 1 अगर आपकी डोमेन है फॉर साइन इनवर्स तो आपका जो थीटा है दैट कुड बी गारंटीड, मतलब मैं गारंटी देके कह सकता हूँ भी -पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। सो यू डोंट हैव टू गो एल्सवेयर, बिकॉज अगर आप इसका एंगल अगर आप पाई बाय 2 से और आगे ले गए, सो इफ यू वांट टेक पाई बाय 2 से और आगे तो हमें एक्चुअली कोई अंदाजा नहीं है अभी ये कितना आगे जाएगा। ओके, बिकॉज ये 150 भी जैसे हमारा पिछला सोल्यूशन 150 पे था, देन इट वेंट टू 390, देन इट कुड इवन हैव वेंट फर्दर। ओके, सो हमें नहीं पता अभी हम कहाँ पे एंड हो। सो टू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव केप्ट द सोल्यूशन ऑफ थीटा टू -पाई बाय 2 टू +पाई बाय 2। एंड the same thing happens with the tan. What happens is, so this is what I'm trying to say. So when x is such that the sine -पाई बाय 2 and x is between sine पाई बाय 2, तो इट कवर्स एवरी वैल्यू बिटवीन -1 से 1। मतलब अगर x साइन -पाई बाय 2 से साइन पाई बाय 2 के बीच में है और हमको पता है ये जो माइनस का साइन है ये बाहर आ जाता है, सो साइन माइनस साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 के बीच में आपको पता है अभी साइन -1 से 1 चला जाएगा, एक्स -1 से 1 चला जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द द सोल्यूशन फ्रॉम बीइंग एनीवेयर एल्स। मतलब आपको कोई बड़े एंगल का की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम अप्लाइज फॉर tan। सो या, सो फॉर ऑल्सो व्हेन इट इज tan -पाई बाय 2, आप सबको पता है भी tan 90 की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होती है, या एक्चुअली इट्स नॉन डिफाइंड, बट जैसे जैसे टाइम tan पाई बाय 2 की तरफ बढ़ने लगता है या पाई बाय 2 को टच करने लगता है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक चली जाती है। एंड जब वो -पाई बाय 2 को टच करता है इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी को चली जाती है। सो इट्स ग्राफ इट्स समथिंग लाइक दिस, इफ यू ट्राई टू ड्रॉ इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके, तो मतलब यू कैन सी दैट अगर आपको tan देखोगे तो -पाई बाय 2 से लेके +पाई बाय 2 तक इट कवर एवरी वैल्यू। सो tan के साथ हमने भी यही किया व्हाट वी डिड विद साइन। बट द नेक्स्ट थिंग cos के लिए दैट इज अ लिटल डिफरेंट। सो लेट्स सी व्हाट दैट्स अबाउट। सो let's see what that's about। Okay, so yeah, so what this is that there is a difference in cos, as you know,
कॉस में क्या डिफरेंस है अभी, जो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव होता है, सो इवन इफ यू गो एंटी क्लॉकवाइज या सॉरी क्लॉकवाइज, जो आपके नेगेटिव एंगल्स में भी कॉस पॉजिटिव ही रहेगा। सो अगर हम -π/2 और π/2 के बीच में अभी भी रहेंगे, तो हम सिर्फ 0 से 1 तक वैल्यू ही कवर कर पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू कवर द नेगेटिव वैल्यूज, हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं कवर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए व्हाट वी डिड इज हमने जो थीटा की रेंज है वो हमने 0 टू पाई रख दी। और हमको पता है जैसे कॉस थीटा एड शुगर टू कॉफ़ी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अगर π/2 से पाई तक कॉस नेगेटिव है और हमें कॉस पाई 0, सो -1 अगर कॉस पाई हम कैलकुलेट करें तो इज इक्वल टू कॉस 0, तो इट विल बी -1। तो for this also the cos covers -1 to 1 when cos is between what, 0 to pi। 0 to pi में cos -1 से 1 तक सब वैल्यूज कवर कर लेता है। सो द रेंज ऑफ cos इज फ्रॉम 0 to pi। तो अगर आप साइन इनवर्स को सॉल्व कर रहे हैं तो द वैल्यू शुड बी फ्रॉम π/2 to -π/2, sorry -π/2 to π/2, एंड सेम इज फॉर tan। अगर आप tan इनवर्स भी सॉल्व कर रहे हैं तो द रेंजेस आर दिस। बट इफ यू आर सॉल्विंग cos इनवर्स द रेंजेस शुड बी दिस। ओके, 0 से पाई में आपको अपना आंसर देना पड़ेगा। एंड सारे कंप्यूटर्स इसके लिए वेल रजिस्टर्ड हैं, सो यू डोंट हैव टू माइंड दिस वेरी मच, बट यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, फिजिक्स में आपको इसकी कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको ये पता है तो आप जो ऑप्शंस गलत हैं एक आंसर में उनको आप पहले ही निकाल सकते हो। ओके, दैट इज व्हाट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर। तो नेक्स्ट आई वांना just tell you how what is the way to write and what is the way to solve this kind of equation. Okay, now you know everything about or at least the basic of everything about inverse trigonometry. So now you can solve any problem, right? Now you can solve any problem. So let's just take a basic one. So yeah, now you are capable of solving this. Let's see. So if I ask you that cos theta is equal to 1 by root 2, you know it is of 45 degrees, right? So 45 degrees, it's 1 by root 2. So let's see the answer. So we write it like this, that theta is equal to cos inverse 1 by root 2, एंड एज वी नो अगर कॉस इनवर्स है तो जो एंगल है आपका वो 0 से पाई तक आएगा। सो थीटा कम आउट टू बी π/4। एंड वन मोर थिंग हेयर, दैट अगर आपको कई बार क्या होता है, अभी अगर आपको कुछ ऐसा आ जाता है इज इक्वल टू वाई या इज इक्वल टू एक्स, सो व्हाट यू डू इज आपका आंसर अगर आप ऐसे छोड़ आओगे दैट थीटा इन सब्जेक्टिव इफ यू आर टॉकिंग वी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, देन यू वॉन्ट बी रॉन्ग। ओके, मतलब आपको रॉन्ग मतलब आपको गलत नहीं किया जाएगा। बट इफ इट्स अ फेमिलियर एंगल यू राइट, इफ इट्स नॉट अ फेमिलियर एंगल, अगर जैसे हमने वो 0.66 वाला एग्जांपल लिया तो इट वाज नॉट अ फेमिलियर एंगल, सो यू डोंट नीड टू राइट इट देयर। बट अगर आपको कभी वेरिएबल्स में आंसर आ जाता है तो यू कैन लीव इट लाइक दिस। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू।